हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल डिकोड द लॉ। आप सभी लोगों की स्वागत करती हूँ हमारे सीआरपीसी लेक्चर सीरीज में। इन दिस वीडियो आई विल कवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल केस बाय द पुलिस ऑफिसर। मतलब जहाँ पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो, पुलिस ऑफिसर कैसे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो और अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो कोर्ट में, और इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, देन दीज प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आपको जुडिशरी मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो तो एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। Section 154 of the Code of Criminal Procedure enumerates the provisions relating to registration of FIR. That is, first information report. Although the term FIR has not been defined anywhere in the Code of Criminal Procedure, but we get a concept of FIR from Section 154. मैं 154 के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी हूँ, and in that video I have incorporated every minute detail that will help you to frame the answer in the examination. So आप पहले वो वीडियो देख लीजिए and I will put the link in the description box. And in this video I will start with section 156. Because after registration of the FIR under section 154, it is directly section 156. Then 157, 158, 159, 160. In this video, I will cover till section 160. And this is the procedure that has to be followed by the police officer while investigation of a cognizable case. So, let's get started with section 156. Section 156 enumerates the provisions relating to powers of the police officers to investigate a cognizable case. So, after registration of the FIR, the police officer directly will rely section 156. So, 156 actually comprises of three subsections. So, subsection 1 states about any officer in charge of a police station may, without the order of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 13. इसका मतलब है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को कोई कॉग्निजेबल केस हुआ है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पुलिस ऑफिसर का वो पावर है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। मतलब मैजिस्ट्रेट से कोई परमिशन लेना नहीं पड़ेगा। विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर ऑन द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल केस इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जिस पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन बनता है वो इन्वेस्टिगेट करेगा उस ऑफेंस का, and that would come under the purview of chapter 13. Chapter 13 of the Code of Criminal Procedure enumerates the provisions relating to jurisdiction. So we will deal with this later on, and this chapter actually states about कहाँ पर offense का inquiry, trial और investigation होगा. Now let's come to subsection 2. Subsection 2 states about no proceedings of a police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. That means a police officer who is investigating the offense, मतलब cognizable offense जहाँ पर हुआ है, पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। एंड जहाँ पर पुलिस ऑफिसर ऐसा इन्वेस्टिगेट मतलब कर रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ओके, एंड सबसेक्शन 3 स्टेट्स अबाउट एनी इन्वेस्टिगेशन empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. That means जहाँ पर police officer is actually refusing or where the police officer is denying to conduct any investigation, then वो magistrate जिसका under section 190 में power है, मतलब एक offense अगर कुछ commit हो, then magistrate will take the cognizance in order to conduct the trial, right? So at that point of time वो मैजिस्ट्रेट
पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है आप ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेट कंडक्ट कीजिए। नाउ आफ्टर सेक्शन 156 वी हैव टू कास्ट आवर ग्लांस एट सेक्शन 157। मतलब 156 के बाद 157 का जो प्रोसीजर बोला गया है वही फॉलो किया जाएगा। This section comprises of total 2 subsections. So subsection 1 states about if from information received or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect that the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to the magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and shall proceed in person। इसका मतलब है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है दैट एक ऑफेंस हुआ है एंड पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन सस्पेक्ट कर रहा है कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है and the police officer is empowered under section 156 to investigate। मतलब 156 of the code of criminal procedure empower करता है एक पुलिस ऑफिसर को to direct investigate where a cognizable offense has happened, right? So जहाँ पर पुलिस को मतलब लगता है कि मैं empowered हूँ under section 156 to investigate the offense, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को एक फोर्थविथ मतलब है इमीडिएटली एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा और सेंड करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को हु इज़ एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस। मतलब जहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा और सेंड करना पड़ेगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट हु इज़ एम्पावर्ड टू कंडक्ट द ट्रायल ऑफ दैट पर्टिकुलर केस and such case will proceed as it has been instituted on a police report। समझा जाएगा कि वो केस का कॉग्निजेंस लिया है मैजिस्ट्रेट ने ऑन द बेसिस ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। सो सबसेक्शन 1 बेसिकली स्टेट्स अबाउट जहाँ पर पुलिस ऑफिसर सस्पेक्ट कर रहा है कि कोई ऑफेंस हुआ है एंड वो एम्पावर है अंडर सेक्शन 156। देन एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करने के बाद एक रिपोर्ट भेजना पड़ेगा इमीडिएटली टू द मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस। Now, the later part of subsection 1 states about that shall depute one of his subordinate officer not being the rank as the state government may in general or special order prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case and if necessary to take measures of the discovery and arrest of the offender। एंड द लेटर पार्ट ऑफ सबसेक्शन 1 स्टेट्स अबाउट पुलिस ऑफिसर कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट कर सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट जनरल और स्पेशल ऑर्डर से प्रिस्क्राइब कर देगा टू प्रोसीड ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड इफ नेसेसरी डिस्कवर मतलब कुछ ऑफेंस हुआ है ऐसा डिस्कवर करने के बाद लगता है कि ये पर्सन ऑफेंस कमिट किया है उस ऑफेंडर को अरेस्ट भी कर सकता है। Now, provided that clause A states about where the offence is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot। इसका मतलब है जहाँ पर ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो उनका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उनको भेज सकता है स्पॉट पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन पर्सन मतलब पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है मतलब खुद नहीं जाकर वो सबऑर्डिनेट कोई ऑफिसर को भेज सकते हैं। नाउ क्लॉज बी स्टेट्स अबाउट इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। मतलब पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन यहाँ पर कुछ सीरियस ग्राउंड नहीं बन रहा है ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का, देन अगर उनको लगता है कि ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। सबसेक्शन 2 स्टेट्स अबाउट दैट in each of the cases mentioned in clause A and B of the proviso to subsection 1, the officer in charge of a police station shall state in his report his reason for not fully complying with the requirements of that subsection, and in case mentioned in clause B and the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the state government, the fact that he will not investigate the case or cause to be investigated। मतलब जहाँ पर पुलिस ऑफिसर इज़ ऑफ ओपिनियन दैट क्लॉज ए और बी में जो बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट ऑफिसर को मतलब डिप्यूट कर सकता है अगर कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है, और क्लॉज बी में बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर को अगर लग रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुलिस ऑफिसर
को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा कि क्यों वो इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता है एंड व्हाट इज़ द रीज़न, वो सब कुछ बोलना पड़ेगा। एंड आफ्टर सेक्शन 156 पुलिस ऑफिसर शैल रिलाई ऑन सेक्शन 158, मतलब 157 के बाद 158 में जो प्रोसीजर दिया गया है वही फॉलो करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। सबसेक्शन 1 बोल रहा है एवरी पर्सन सेंट टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 shall, if the state government so directs, be submitted through such superior officer of the police as the state government by general or special order appoints in this behalf। मतलब जहाँ पर 157 पर एक्ट किया गया है, 157 क्या बोल रहा है? 157 actually states about procedure of investigation of preliminary inquiry, right? So 157 पर जहाँ पर एक्ट किया गया है एंड देन उसका जो रिपोर्ट है वो भेजना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को, एंड जैसा स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगा उस प्रोसीजर को फॉलो करके भेजा जाएगा, एंड दैट विल बी सबमिटेड थ्रू द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। सबसेक्शन 2 states about such police officer may give such instruction, मतलब वो पुलिस ऑफिसर इंस्ट्रक्शन देगा टू दी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, मतलब वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप विदाउट एनी डिले वो ट्रांसमिट कीजिए मैजिस्ट्रेट को। नाउ लेट्स कम टू 159। सो आफ्टर सेक्शन 158 जहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कमिट हुआ है, आफ्टर सेक्शन 158 159 विल कम इनटू द पिक्चर। सो 159 सेज अबाउट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, मतलब जो इन्वेस्टिगेट किया गया है 157 पर, उसका जो रिपोर्ट है वो रिसीव करने के बाद may direct an investigation or if he thinks fit at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold preliminary inquiry into, मतलब जो रिपोर्ट है जो 159 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। Now let's come to 160. 160 states about police officers' power to require attendance of witnesses, मतलब पुलिस ऑफिसर्स पावर, पुलिस ऑफिसर को पावर दिया गया है वो विटनेस को बुला सकता है। से फॉर एग्जांपल सपोज आपके नेबरहुड में कोई ऑफेंस हुआ है, मान लीजिए चोरी का ऑफेंस हुआ है, पुलिस ऑफिसर विल कम एंड डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर विल आस्क यू दैट आपने कोई आवाज़ सुनी है, कितना लोग थे, कोई मतलब चीखम चिल्ली हो रहा था, ऐसा कुछ पुलिस ऑफिसर विल आस्क यू, राइट। एंड ये पूछने के लिए पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, आपको बुलाएगा, राइट। सो आपका अटेंडेंस मांगेगा कि आप यहाँ पर आके जो आपने सुना है और देखा है, मतलब जो इंसिडेंट से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन है आपसे मांगेगा, राइट। एंड ये जो प्रोविज़न है जो पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, ये प्रोविज़न और ये पावर दिया गया है सेक्शन 160 पर। सो 160 सबसेक्शन 1 स्टेट्स अबाउट एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ of every person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend as to required। इसका मतलब है जो पुलिस ऑफिसर वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस ऑफेंस का, एंड वो इंसान जो विद इन हिट्स लोकल लिमिट्स, मतलब जो पुलिस स्टेशन का जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर में ही रहता है, और एडजॉइनिंग जो पुलिस स्टेशन है उसका जुरिस्डिक्शन पर रहता है, उसको बुलाकर जो एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, मतलब जो ऑफेंस हुआ है घटना से मतलब जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ मतलब पता है उनको, उस इंसान को बुला सकता है। provided that no male person under the age of 15 years or woman shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman reside। मतलब जहाँ पर 15 बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मतलब वुमेन और मेल जो उनका उम्र 15 साल से नीचे है उनको बुलाया जाएगा एट एनी प्लेस वहाँ पर वो रिसाइड नहीं करते, मतलब नहीं रहते हैं। Now, subsection 2. Subsection 2 states about the state government may by rules made in this behalf provided for the payment of the police officer or the reasonable expenses of every person attending under subsection 1 at any place other than his residence। मतलब जहाँ पर subsection 1 पर कोई इंसान को बुलाया जा रहा है
वो अदर देन हिज रेजिडेंट है, एक्सपेंसेस है, मतलब वो ट्रैवल कॉस्ट है, वो पुलिस ऑफिसर उनको देंगे एज द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देंगे. अकॉर्डिंग टू दैट पुलिस ऑफिसर विल गिव द रीजनेबल एक्सपेंसेस हु हैज़ बीन कॉल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर. सो दैट इज़ द प्रोसीजर दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय द पुलिस ऑफिसर जहाँ पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है. ये सारा जो प्रोसीजर बोला गया है फ्रॉम सेक्शन 154 टू 160 दैट आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर नीड टू प्रोसीड लाइक दिस. So I hope your entire concept regarding investigation of a cognizable offense has been clear to you. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा है and you have got the clear concept that what is the procedure that has to be followed by the police officer where the cognizable offense has happened. एंड आपको डायरेक्ट ये प्रोसीजर बेयर एक्ट में स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलेगा, बिकॉज बेयर एक्ट में सेक्शन 154 के बाद 155 आता है जो डील करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. सो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन यू हैव टू स्टार्ट विथ सेक्शन 154, देन 156, 157, 158, 159, 160 and so on. And in this video I have covered till section 160. In the later part of this video I will discuss from section 161. So I hope you have got the clear concept about this procedure. So I will see you on the other side. Till then, stay happy, keep learning. Thank you so much.